सारा टॉपिक शुरू करने लगे जिहड़ा वो है फ्रिक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रिक्शन की होती है? It comes into play when one surface slides upon the another surface. It is a self-adjusting force that is its value goes on increasing as the force applied on the sliding body goes on increasing till the body starts sliding. That is, when a body actually moves on the surface of the other body, it acts in a direction opposite to the direction of the motion of the body. It is called frictional force. Cause की है friction दा जिहड़े molecule जिहड़े साडे molecular interactions between the actual contact points at contact points में दो surfaces दे contact point which have the tendency to clinch when moving A on B, then bonds between the molecules form and break, and this is the cause of the friction. ਹੁਣ friction कई तरह की है, types of friction. पहली friction जिहड़ी ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ under the heading types of friction ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ static friction. Static friction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ body has the tendency to move but the body does not move. It is a self adjusting. ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. Body has the tendency to move but the body is not moving. और ਜਿਹੜੀ frictional force है it acts in a direction opposite to the direction of the motion of the body. Limiting force ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ body is on the verge to move. और ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ coefficient of static friction है या limiting friction है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it depend upon the nature of the two surfaces in contact and their diverse and their roughness and their roughness. Kinetic friction ਜਦੋਂ body actually move करती है mu k r, ठीक है। और ਜਿਹੜਾ coefficient of kinetic friction है static friction नालों और ਜਿਹੜੀ काइनेटिक फ्रिक्शन हैगी है वो स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन दे नालों घट हुंदी है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एस इज मोर देन म्यू के एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन एफ के। जे ग्राफ बना के देखो तो शुरू दे विच साडे कोले स्टैटिक फ्रिक्शन है, ਇੱਥੇ जाके साडे कोले मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फिर बॉडी मूव करन लग गई साडी काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये जेहड़ी चीज है एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। आ जिहड़ी हैगी है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये जिहड़ी हैगी है इहनूं कहंदे आ जिहड़ी बॉडी है दैट इज static friction. Body has the tendency to move but the body is not moving when the body is on the verge of moving, when the body is actually moving. And force of limiting friction acts in a direction opposite to the direction of the motion of the body and it is directly proportional to the normal reaction of the body. ठीक है? Force of friction acts in a direction opposite to the direction of the motion of the body and it is very directly proportional to the normal reaction of the body. It depends on the nature of the two surfaces in contact and their roughness. ये गल ध्यान च रखनी है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ tend to move it in the forward. Box has a tendency to move backward. Friction in the forward direction. Friction इधर लगूगी। Small f मैंने friction में यूज किया है। आओ देखिए ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ न्यूमेरिकल इसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल है ओके है 4 किलो का मास पे है 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। पहला देखो जकड़ कितनी है, जकड़ वो कितने बराबर होगी म्यू के इंटू आर, आर कितने बराबर है एम जी म्यू एस इंटू आर, आर कितने बराबर है एम जी एस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6, मास 4, जी 10, ये आ गया 24 न्यूटन। और 24 न्यूटन जकड़ ज्यादा है किस तो FL is more than 20 न्यूटन, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, बॉडी मूव ਇਹਦਾ मतलब F कितना आ जाएगा जे आंसर लिखना होवे 20 न्यूटन, जिन्ना ਸਾਨੂੰ ਇਹ वाली फोर्स है उन्ना ही आ जाएगी। ये सी पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखो, साडे कोले फोर्स लग रही है इस पासे
ये लग रही है 20√2 cos 45 20 न्यूटन, इधरले पासे में फोर्स लग रही है 20 न्यूटन sin 45। ठीक है, हुण 6 किलोग्राम की बॉडी है, स्टैटिक फ्रिक्शन दी हुई है, म्यू के दिता हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू आर। R इज इक्वल टू mg। पहले वो चेक करना है असि केड़ी फ्रिक्शन यूज करके स्टैटिक की बॉडी मूव करूगी या नहीं मरूगी, लिमिट चेक करने लगी हैं। म्यू एस कितना है 0.2, m कितना है 6, g कितना है 10, यानी 12 न्यूटन। हुण 12 न्यूटन फोर्स बड़ी घट है, 20 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, ਇਹਦਾ मतलब बॉडी विल मूव FL इज लेस देन 20 न्यूटन। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ FL इज ग्रेटर देन, ਜਿਹੜੀ ਜਕੜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬॉडी मूव नहीं करेगी, ਉਰੇ FL ਜਕੜ ਘੱਟ ਹੈ 20 न्यूटन ਨਾਲੋਂ, सो बॉडी विल मूव। अगर बॉडी मूव करूगी तो इधर की फोर्स आ गई, आ जी स्मॉल एफ है, हम इन्हें चेक करेंगे स्मॉल एफ आई कितनी है, बॉडी के मूव करूगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करूगी, म्यू के इंटू आर। म्यू के कितना है 0.1, मास कितना है 6, जी कितना है 10, ये आ गई 6 न्यूटन। v अगे नू है 6 पिछे नू है, एक्सेलरेशन कितनी आऊगी v माइनस 6 बटा g 14/6 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मत 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगे नू 20 न्यूटन, पिछे नू 6, 20 माइनस 6 14/6 ओवर इधर आ गया 7/3। ये सी साडा सेकंड क्वेश्चन। और लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। हुण 20 न्यूटन फोर्स 2 किलोग्राम के मास नू बचा के रखना चाहती है, इधर नू कितनी फोर्स लग रही है mg 20 न्यूटन। जकड़ कितनी है, जकड़ चेक करो, पहले कहोगे जकड़ नू चेक करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ, बाकी गल्लां बाद च है। जकड़ चेक की म्यू एस इंटू आर, आर किसके बराबर है mg के बराबर है, mg म्यू एस कितना है 0.8, m कितना है 2, g कितना है 10, ये आ गया 16। हुण जकड़ हैगी है 16 न्यूटन, जकड़ हैगी है 16 न्यूटन, मीन जेड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो घट है, जकड़ घट है किस तो 20 न्यूटन तो। इसका मतलब बॉडी जेड़ी हैगी है 20 न्यूटन फोर्स नीचे में लग रही है, उत्ते में लग रही है, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रही है, वो हैगी है 16 न्यूटन। आपको में देखिए बॉडी मूव करूगी, वो फोर्स कटिए एफ के कटो, यानी एफ के कटने वास्ते की करना पड़ेगा म्यू के mg, म्यू का कितना है 0.6, m कितना है 2, g कितना है 10, ये आ गई 12 न्यूटन। 12 न्यूटन हम इधर मेरा मतलब 12 न्यूटन लग गया। एक्सेलरेशन कितनी आ गई v मींस 12/2 8/2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते एक्सेलरेशन कढो। देखो गिराने वाली फोर्स केड़ी है mg sin थीटा, बचाने वाली फोर्स केड़ी है mg cos थीटा। तो पहला fl कढो, कितनी बॉडी बचेगी या नहीं, म्यू आर म्यू mg sin ऑफ mg cos ऑफ r is equal to mg cos ऑफ थीटा। लो जी म्यू कितना है 0.7, m कितना है m मास 2 किलोग्राम, g कितना है 10, cos थीटा कितना है cos 30 √3/2, 2 कैंसर, ये आ गया 7√3 न्यूटन। अच्छा जी, चलो हम गिराने वाली फोर्स देखिए, ਜਿਹੜੀ गिरा के रखूगी, ये सी बचाने वाली फोर्स, जकड़ इन्नी है, गिराने वाली कितनी है mg sin थीटा, इनू मान लो स्मॉल f है, ये गिराने वाली फोर्स है, ये कितनी है m मास g 10 sin 30 1/2, ये कितनी आ गई 10 न्यूटन। नाउ दिस फोर्स जकड़ है ये जड़ी वो ज्यादा है, गिराने वाली फोर्स तो बचाने वाली फोर्स है जड़ी वो ज्यादा है, बॉडी विल नॉट फॉल डाउन, बॉडी विल नॉट fall down।
सो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही आंसर आ जाएगा 7√3 का 7√3 न्यूटन ही आंसर आ जाना सीगा ठीक है जी एक क्वेश्चन आओ देखिए पंजवां सवाल म्यू दिता होया 0.3 आई ते जे दे कंपोनेंट इधर नु 1 है यानी कि इधर नु 4 है इधर नु 10 है तो नॉर्मल रिएक्शन आऊगा 6 सीधी गल है कहना फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड द फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर म्यू दिता होया म्यू आ जकड़ चेक करो जकड़ किवें चेक करांगे 0.3 नु 6 ना मल्टीप्लाई कर लो 1.8 न्यूटन आ गया हुण जकड़ ज्यादा है जकड़ एफएल ज्यादा है किस तो एक तो आ 1 न्यूटन तो बॉडी विल नॉट मूव बॉडी मूव ही नहीं करूंगी अगर मूव नहीं करूंगी तो 1 न्यूटन फोर्स लग रही है ठीक है इधर नु ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट इज आल्सो 1 न्यूटन frictional force is also 1 न्यूटन so 1 न्यूटन is the correct answer now move to question number 6 इस देखो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स थल्ले नु लग रही है ऊपर नु ओदी कितनी फोर्स लगूगी पहला ये देख लीजिए we proceed with the force of 12 Newton find the force exerted by the ball on the block आ coefficient of friction दिता होया बॉक्स वेट है जेड़ा वो 5 न्यूटन है बॉक्स दा वेट 5 न्यूटन है एक्चुअल वेट नहीं पता तो ਇਹ ਜੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ फ्रिक्शन जकड़ चेक करनी है साडी जकड़ कितनी है ठीक है जकड़ चेक करन दे नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ म्यू आर लाना पऊगा आर है जिहड़ा ये नॉर्मल रिएक्शन है आर आ वाला तो इत्थे जब तुसी म्यू आर अप्लाई करोगे एफ इज इक्वल टू म्यू आर तो ये एफ इज इक्वल टू म्यू आर है जिहड़ा ये बन जाएगा 7.2 न्यूटन यानी कि साडी जिहड़ी जकड़ है वो ज्यादा है 5 न्यूटन फोर्स तो इसका मतलब एफएल इज मोर देन 5 न्यूटन सो बॉडी विल नॉट मूव बॉडी मूव तो नहीं करूगी पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर द अंडर रूट 144 प्लस 25 169 13 न्यूटन इज द आंसर लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 सारे दी कोई तरीका है अपनी जकड़ चेक करनी है साडे कोले एक स्मॉल मास m है नॉर्मल रिएक्शन r लग रही है गिराने वाली फोर्स बचाने वाली फोर्स तो mg है बचाने वाली फोर्स कितनी है should be less than एक गिराने वाली फोर्स है mg थल्ले नु गिर रहा है r नॉर्मल रिएक्शन उन्हों बचा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है r इस डायरेक्शन से एक्ट कर रहे हैं कहना फाइंड द एक्सेलरेशन सो दैट द बॉक्स मे नॉट फॉल r नॉर्मल रिएक्शन म्यू mg आ जी ते जी कट गया एक्सेलरेशन कट के दिखाओ एक्सेलरेशन बॉडी इधर नु मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए आ रहा नॉर्मल डायरेक्शन है mg इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन रफनेस बिटवीन द सर्फेसेस एक मिनट आर जी इक्वल टू एम ए के बराबर है एम एम कट गया एक्सेलरेशन कटनी है जी इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ए जी बाय ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाय म्यू G by mu acceleration is greater than or equal to G by mu ठीक है ये मान गए यानी कि acceleration is equal to G बटा mu कोई गल आए नहीं let's move to question number 8
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ y ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਚੇਨ ਐਂਡ l ਹੈ अगर टोटल लेंथ ऑफ चेन L है y इस चो लंघ गई L माइनस y ये रह जूगी हुण L लेंथ का मास m है एक दा होगा m बटा L ते y दा होगा m बटा L इनटू y हुण m बटा L इनटू y गिराने वाली फोर्स बचाने वाली फोर्स तो घट होनी चाहिए ता बॉडी फॉल नहीं करूगी विदाउट स्लाइडिंग मैक्सिमम पोर्शन of the chain can be hanged without sliding लो जी ये कितना आ जाएगा ये बन गया m बटा l into y into g should be less than a force mu coefficient of friction है ऊपर कितना पोर्शन रह गया m बटा l into l minus y लो जी हाँ m कट गया ए आ गया इनटू जी भी लिखना ये बन गया जी भी कैंसिल हो जाएगा ये बन जाएगा y should be less than or equal to mu of l minus y of 1 plus 1 bata mu should be less than or equal to mu l y bata l should be less than or equal to mu bata 1 plus mu ये आंसर ना तो y के बराबर हो गया शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू बटा 1 प्लस म्यू इनटू l ये चीज बन गई इसी का 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की है आ साडे कोले 60 डिग्री एंगल दे उत्ते फोर्स लग रही है मैं एक्सटेंड कर लूं इधरले पासे जे आ एंगल 60 है तो आ भी 60 है जे ए 60 है तो इधरला पासा हो जाएगा f cos of 60 निचला पासा हो जाएगा f sin of 60 हुण लेके जाने वाली जेडी फोर्स है cos 60 should be less than or equal to mu r r जेड़ा हुंदा है it should be f cos of 60 should be less than or equal to mu r किसके बराबर है mg plus f sin of 60 f cos of 60 1 by 2 should be less than or equal to mu है 1 by 2 root 3 m root 3 g 10 plus f sin 60 root 3 by 2 इनमें ना मल्टीप्लाई कर दिया f by 2 should be less than or equal to 5 इनमें ना मल्टीप्लाई रूट थ्री कट गया 2 का 4 कट गया प्लस f बटा 4 इनमें इधर में आता f by 2 चो f by 4 माइनस कर दो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 ये बन गया 2f by 4 f by 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 तो f शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 तो f शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन एनी फोर्स आ जाएगी So what maximum force that can be applied on the box? Do not move. Box ना move करे. So minimum force should be 10 Newton. So that the box won't move. ये सीधे कुछ numerical आज जैसे जनरल कंसेप्ट पढ़िया फ्रिक्शन की है और उधे नाल संबंधित कदों बॉडी मूव करती है कदों बॉडी मूव नहीं करती ये सी आज का सारा टॉपिक फ्रिक्शन हम पढ़ांगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होंदा है ये चीज़ां नूं कल नूं पढ़ांगे फ्रिक्शन के की बेनिफिट्स है की लिमिटेशंस ने ये साडा हुण अगला टॉपिक होएगा।